Good morning, class. Uh, Now we are going to start exercise number 4. Yesterday I have given you homework. Now I'm going to tell you the answer of exercise number 4. You all have to just check your answers with me whether it is matching or not. Okay. Now see here. Read the sentences. It is on the page number 10. Okay. All of you open page number 10. Now see. Exercise 4. Read the sentences given below. You have to read the sentences which are given below. Write A for assertive sentence statement. You have to write A for the assertive statement and N for the negative statements, Q for interrogatives and I for imperative statement. Now see. Where are you celebrating your birthday? आप अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? You can see question mark here. This is asking question. So for the interrogative we have to write Q. Okay. All these things I have written in my copy. You can see here because you will find answer also. I can't write in book. Now see here. Second one. I like home cooked food. मुझे घर का बना हुआ खाना अच्छा लगता है. So this is assertive sentence. It's a simple statement. It is just telling us something. So we can say this is assertive sentence. Now you must drink a lot of water. तुम्हें ढेर सारा पानी पीना चाहिए. Here the sentence is advising something to you. So this is imperative sentence. You will write I for imperative sentence. Okay. Now she did not go to the doctor. वो डॉक्टर के पास नहीं गई. You can see not here and here you can see for the negative statements you have to write N. So we will write N here. Get out of my room. मेरे room से दफा हो जाओ. So it somebody is ordering you. So you will write I because this is an imperative sentence. Now Seema cleaned the house nicely. Means सीमा ने घर को बहुत ही अच्छे से साफ किया. So this is a simple statement. You will write A. That means assertive sentence. Now please give me a glass of water. कृपया करके मुझे एक ग्लास पानी दो. So here somebody is requesting you. So you will write I because it is an imperative statement. Now where do you live? You can see question mark here. You will write Q. Which is your favorite game? Again question mark. You will write Q. I will learn my lessons today. मैं आज अपने lessons learn करूँगा. So this is a simple statement. So you will write A. Now I have not completed my work. So here you can see not. So this is negative statement. Kindly visit my house tomorrow. कृपया कल मेरे घर पधारिए. So this is an imperative sentence. Someone is requesting you. Now Anirudh is my best friend. This is a simple statement. You will write A, assertive sentence. Do you like to play football? Again you can see question mark. This is the question. Interrogatives. Now we are going to do, we have finished this exercise number 4, all these 14 questions. Okay, now come on page number 11 and see exercise number 5. Exercise 5 is asking you change the following positive statements into negative. These are all are positive statements. You have to change these all statements into negative. Okay, means you have to put not, never, like these types of things in between these sentences so that it will become negative statement. आपको ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्य दिए हुए हैं. आपको नकारात्मक बनाना है. इसके लिए आपको नो, नॉट, नेवर इसमें से इनके बीच में कुछ भी लगाएंगे जहाँ पे जो उचित है, जो सुटेबल है, और फिर ये निगेटिव बन जाएंगे. आई एम हैप्पी टुडे. सो इसको भी आप देख सकते हैं. आई एम हैप्पी टुडे.
तो आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है। आई एम नॉट हैप्पी टुडे, आई एम रेडी फॉर द पार्टी, आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी। आई एम हैप्पी टुडे मीन्स आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश नहीं हूँ, आपको ये बनाना है। आई एम रेडी फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए रेडी हूँ। आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए रेडी नहीं हूँ। जहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता है उसी के साथ नॉट लगा दीजिए, ठीक है। सोनू कैन रन फास्ट, सोनू कैन नॉट रन फास्ट, सोनू तेज़ दौड़ सकता है, सोनू तेज़ नहीं दौड़ सकता है। वी विल लीव टुडे, आज हम जाएंगे, वी विल नॉट लीव टुडे। वी शुड प्ले दिस गेम, वी शुड नॉट प्ले दिस गेम। सान्या इज स्कीपिंग द रोप, सान्या रस्सी कूद रही है, सान्या इज नॉट स्कीपिंग द रोप। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। क्लोज द विंडो, डोंट क्लोज द विंडो। रंजना इज स्लीपिंग, रंजना इज नॉट स्लीपिंग, रंजना सो रही है, रंजना नहीं सो रही है। कविता इज डांसिंग, कविता इज नॉट डांसिंग। पूजा इज लर्निंग हर लेसन्स, पूजा इज नॉट लर्निंग हर लेसन। आप चाहें तो जहाँ भी मैंने ये सारे आपके जैसे ये विल नॉट है, ठीक है, शुड नॉट है, इन सब का शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ नॉट का मैंने लिखा है इजेंट, ओके। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी हैज़ नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है, सुंदर ड्रेस नहीं है। आई हैव मनी विथ मी, आई हैव नॉट मनी विथ मी। दे वर रेडी टू गो, दे वर नॉट रेडी टू गो, वे जाने के लिए तैयार थे, वे लोग जाने के लिए नहीं तैयार थे। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, डोंट गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो हियर वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 5. नाउ turn to page number 12. You will find exercise number 6. Now see, exercise 6 is asking you study the examples. First of all you have to study the examples, okay, below means नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को पढ़िए एंड कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव। मीन्स ये जो भी आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन सारे स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना यानी बदल देना है इनटू इंट्रोगेटिव, मीन्स इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। एग्जाम्पल कह रहा है पढ़ने के लिए, तो देखते हैं। आई एम फैट, मैं मोटी हूँ, तो इसका इंट्रोगेटिव मीन्स इसका क्वेश्चन बनाना है, तो आप बोलेंगे एम आई फैट, क्या मैं मोटी हूँ, यानी जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ब रहता है ये पहले आ जाता है, ठीक है। शी कैन हेल्प मी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन पहले आ जाएगा, कैन शी हेल्प मी। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, हैज़ शी कंप्लीटेड हर वर्क। उसी तरह से ये सारे आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करने हैं, तो देखते हैं। Exercise 6. Convert the following statements into interrogative. The road is narrow and bumpy. यानी रोड जो है वो सकरी और ऊबड़ खाबड़ है, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसको पहले ला देंगे। इज़ द रोड नैरो एंड बम्पी, बाकी पूरा ऐसे लिख देंगे। ये इज़ उठा के पहले ला दिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए, और बाकी पूरा ऐसे ही लाइन से लिख देंगे। द रोड, और ये तो यहाँ आ गया था उठकर, तो बाकी क्या बचा इधर, नैरो एंड बम्पी, उसी तरह से लिख देंगे। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है और क्वेश्चन बन जाता है। शी विल बी रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो आपको विल को पहले लाएंगे, विल, फिर बाकी आप अपना पूरा लिख देंगे। विल को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, पहले ला दिया जाएगा, तो विल, फिर उसके बाद क्या बचा, शी बी रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। सानिया हैज़ रिटन द लेटर, यहाँ हैज़ है, हैज़ को पहले ला दिए, तो हैज़ सानिया रिटन द लेटर, क्या सानिया ने पत्र लिखा है। द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो इज़ पहले आ जाएगा। इज़ द डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा है। महेश इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ये इज़ पहले आ जाएगा। इज़ महेश एन ऑनेस्ट मैन, क्या महेश एक ईमानदार आदमी है। द क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट, क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आर द क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट, ये आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले ला दिए। द रिवर वॉज डीप, नदी बहुत गहरी थी। वॉज द रिवर डीप, क्या नदी बहुत गहरी थी। द लिटिल चाइल्ड इज स्लीपिंग, यानी छोटा बच्चा सो रहा है। इज़ द लिटिल चाइल्ड स्लीपिंग, क्या छोटा बच्चा सो रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर इज़ पहले ला दिया। अनामिका इज़ राइटिंग नीटली, अनामिका
बहुत ही सफाई से लिख रही है। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसको पहले ला देंगे। इज़ अनामिका राइटिंग नीटली, क्या अनामिका सफाई से लिख रही है। वी कैन स्टैंड हियर, हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, क्या हम यहाँ खड़े हो सकते हैं, कैन वी स्टैंड हियर। इट इज़ सनी टुडे, आज बहुत धूप है। इज़ इट सनी टुडे, आप ये इज़ पहले आ जाएगा और बाकी पूरा लिख देंगे। सिमरन वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, सिमरन सही कह रही थी। तो वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ गया। वॉज सिमरन स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या सिमरन सही कह रही थी, सच कह रही थी। द स्कूल इज़ फार फ्रॉम हियर, स्कूल यहाँ से बहुत से दूर है। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ दिख रहा है, इसको पहले ला देना है। इज़ द स्कूल फार फ्रॉम हियर, क्या स्कूल यहाँ से दूर है। मदर विल मेक स्नैक्स फॉर मी, मम्मी आज मेरे लिए स्नैक्स बनाएंगी। विल मदर मेक स्नैक्स फॉर मी, क्या मम्मी मेरे लिए आज स्नैक्स बनाएंगी। शी हैज़ मेड चॉकलेट्स फॉर मी, उसने मेरे लिए चॉकलेट बनाया है। हैज़ शी मेड चॉकलेट्स फॉर मी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ है जो कि पहले आ गया और बाकी आप पूरा लिख दिए। सो यू कैन सी वी हैव ऑल्सो done exercise number 6, all the 15 questions. So these are the things you have to do it in your grammar book if you have, and if you people not having grammar book, you can write it in your grammar copy but with the questions. ओके ये नहीं कि आपने सिर्फ आंसर ही आंसर लिख दिया ग्रामर कॉपी में, आपको इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी लिखने हैं। ओके, सो in the next turn we will read chapter 2 subject and predicate. Now that's all for today. Come on the WhatsApp group and I'm sending the pic of the exercises. You just note down in your fair copy.